নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ অসম চৰকাৰৰ শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান স্থগিত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অসম ভ্ৰমণ বাতিল হোৱাৰ বাবে বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান স্থগিত ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৰ দুদিনীয়া অসম ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰা হৈছে পেহেলগামৰ নৰসংহাৰৰ পিছতে ভ্ৰমণ বাতিল 25 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল এই অনুষ্ঠানত অংশ লোৱাৰ কথা আছিল ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৰ নৃত্য প্ৰতিয়সী সোণাল মানসিঙলৈ ঘোষণা কৰা হৈছিল শংকৰদেৱ বঁটা অসম চৰকাৰৰ শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান স্থগিত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অসম ভ্ৰমণ বাতিল হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান স্থগিত ৰখা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ দুদিনীয়া অসম ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰা হৈছে পেহেলগামৰ কালিৰ নৰসংহাৰৰ পিছতে এই ভ্ৰমণসূচী বাতিল 25 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল এই অনুষ্ঠানত অংশ লোৱাৰ কথা আছিল ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৰ নৃত্য প্ৰতিয়সী সোণাল মানসিঙলৈ ঘোষণা কৰা হৈছিল এই বৰ্ষৰ শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সৌদি আৰবিয়া ভ্ৰমণ আধাতে সামৰি উভতি আহিল দিল্লীলৈ সকলো কাৰ্যসূচী বাতিল কৰি মোদী উভতি আহিল দিল্লীলৈ ঠিক তেনেদৰে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ অসম ভ্ৰমণসূচী বাতিল কৰা হৈছে 25 এপ্ৰিলত শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠান আছিল আৰু এই অনুষ্ঠান বাতিল কৰা হৈছে পেহেলগামৰ কাণ্ডৰ পাছতে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অসম ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচী বাতিল হোৱাত শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানো স্থগিত ৰখা হৈছে পেহেলগামৰ নৰসংহাৰত 4ৰ পৰা 5টা সন্ত্ৰাসবাদী জড়িত থকাৰ সম্ভাৱনা আৰু ইয়াৰে 3টা সন্ত্ৰাসবাদীৰ স্কেচ অংকন কৰা হৈছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ বিৱৰণ মৰ্মে বিশেষজ্ঞই অংকন কৰিলে সন্ত্ৰাসবাদীৰ স্কেচ ঘটনা সময়ত এটা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বাহিৰত পহৰা দি আছিল বাকি কেইটাৰ ভিতৰত সোমাই চলাইছিল নৰসংহাৰ এই 3টা সন্ত্ৰাসবাদীৰ স্কেচ অংকন কৰা হৈছে সেনাৰ পোছাক পৰিধান কৰি অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল পেহেলগামৰ পৰ্যটনস্থলীত পৰ্যটকসকলৰ ওপৰত চলাইছিল নিৰ্বিচাৰ আক্ৰমণ 4-5টাকৈ কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী জড়িত থকাৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াৰে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি বিশেষজ্ঞই অংকন কৰি উলিয়াইছে 3টা সন্ত্ৰাসবাদীৰ স্কেচ আৰু এই 3টা সন্ত্ৰাসবাদীৰ স্কেচ ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ মূৰৰ মূল্যও ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে কালিৰ নৰসংহাৰত জড়িত আছিল 4ৰ পৰা 5টা সন্ত্ৰাসবাদী ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চৰ 4ৰ পৰা 5টা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত চলাইছিল নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা ইয়াৰে 3টা সন্ত্ৰাসবাদীৰ স্কেচ অংকন কৰিছে বিশেষজ্ঞই পেহেলগামৰ নৰসংহাৰৰ জড়িত এইসকল আক্ৰমণকাৰী স্কেচ মুকলি কৰা হৈছে স্থানীয় লোক তথা প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে মুখাবয়ব কেনেকুৱা আকৃতি কেনেকুৱা সন্ত্ৰাসবাদী কেইটাৰ তাৰ ভিত্তিত বিশেষজ্ঞই এই স্কেচসমূহ অংকন কৰি উলিয়াইছে 3টা সন্ত্ৰাসবাদীৰ এয়া 3খন বিশেষ স্কেচ ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে নিউজ 18ৰ হাতত 3 কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ স্কেচ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ বিৱৰণ মৰ্মে বিশেষজ্ঞই অংকন কৰি উলিয়াইছে সমান্তৰালকৈ গোপন কেমেৰাত বন্দী হোৱা এটা সন্ত্ৰাসবাদীক দেখিবলৈ পোৱা হৈছে হাতত উদ্যত অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ পহৰা দি আছিল এটা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হয়তো এই পহৰা দিয়া সন্ত্ৰাসবাদীটো হ'ব পাৰে গোপন কেমেৰাত বন্দী হোৱা এই সন্ত্ৰাসবাদীটো আৰু বাকি সেনাৰ পোছাক পৰিধান কৰা 3টা সন্ত্ৰাসবাদীৰ স্কেচ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ বিৱৰণ মৰ্মে বিশেষজ্ঞই অংকন কৰি উলিয়াইছে কোনো পদ্ধতি হাৰি যাব নোৱাৰিব কোনো সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হাৰি যাব নোৱাৰিব কালিৰ ঘটনাত জড়িত প্ৰত্যেকটো সন্ত্ৰাসবাদীক বাছি উলিয়াই কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে হুংকাৰ দিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সৌদি আৰবিয়াৰ পৰা তেওঁ হুংকাৰ প্ৰদান কৰি উভতি আহিছে আজি কি কাৰ্যপন্থা হাতত লোৱা হয় সেই সন্দৰ্ভত CCSৰ বৈঠকত লোৱা হ'ব বৃহৎ সিদ্ধান্ত चढ़ा है लेकिन हमारे पास जो ইফালে শ্ৰীনগৰত মৃতকলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে সন্ত্ৰাসবাদী গুলিত নিহতলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন পাক সন্ত্ৰাসবাদী গুলিত মৃত্যু হৈছিল 26 জন পৰ্যটকৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ পিছতে দিল্লীলৈ নিয়া হ'ব মৃতদেহ দিল্লীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ পিছতে নিজ নিজ ঘৰলৈ পঠিওৱা হ'ব মৃতদেহ এয়া শ্ৰীনগৰত
মৃতকক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে শাৰী শাৰী কফিন নিৰীহ ২৬ গৰাকী পৰ্যটকৰ নশ্বৰ দেহত শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সমান্তৰালকৈ নিহতৰ আত্মীয়সকলৰ সৈতেও আলোচনা কৰিছে মত বিনিময় কৰিছে নিহতৰ আত্মীয়ক সাক্ষাৎ কৰিছে মৃতসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে অমিত শ্বাহৰ সন্মুখত কান্দোনত ভাগি পৰে নিহতৰ আত্মীয়সকল ইয়া কান্দোনত ভাগি পৰিছে নিহতৰ আত্মীয়সকল ন্যায় বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ ওচৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিহতসকলৰ আত্মীয়ক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে সান্তনা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আলোকচিত্ৰ কালি নৰসংহাৰ চলোৱা এটা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী টিভিৰ সোঁফালে আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এক্সক্লুসিভ আলোকচিত্ৰ ফাৰ্ষ্ট অন নিউজ 18ত আমি এই আলোকচিত্ৰ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো আপোনাক এটা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী ইতিমধ্যে স্কেচ অংকন কৰা হৈছিল এই কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ নিউজ 18ৰ হাতত আহি পৰিছে এই কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীটো নৰসংহাৰ চলোৱা পেহেলগামৰ নৰসংহাৰ চলোৱা এই কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী ৪ৰ পৰা ৫টাকৈ কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী প্ৰৱেশ কৰিছিল হাতত অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ লৈ পেহেলগামত এই নৰসংহাৰ চলাই নিৰ্বিঘ্নে আঁতৰি গৈছিল আটাইকেইটা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী এয়াৰ ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চৰ এটা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী এটা বিচ্ছিন্নতাবাদী এই সন্ত্ৰাসবাদীটোৱে কালি জড়িত আছিল ২৬ গৰাকী পৰ্যটকক গুলিয়াই হত্যা কৰা ঘটনাত আলোকচিত্ৰ ইতিমধ্যে লাভ কৰা হৈছে এই কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ আলোকচিত্ৰ লাভ কৰা হৈছে যে নেকি পৰ্যটকসকলক কলিমা পঢ়িবলৈ কৈ হিন্দু নে মুছলমান বাছি বাছি হত্যা কৰিছিল সকলো সীমা চেৰাই কাপোৰ খুলি বিবস্ত্ৰ কৰি পৰ্যটকসকলক হত্যা কৰিছিল নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰিছিল সেই বৰ্বৰচিত হত্যাকাণ্ডত জড়িত নৰসংহাৰত জড়িত এই কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আলোকচিত্ৰ ইতিমধ্যে লাভ কৰা হৈছে এনআইএ ইতিমধ্যে তদন্ত হাতত লৈছে নতুন দিল্লীৰ পৰা এনআইএৰ দল ৰাওনা হৈছে শ্ৰীনগৰৰ পৰা ঘটনাস্থলীলৈ নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেন্সিৰ দল ৰাওনা হৈছে নিৰাপত্তা এজেন্সিসমূহ এই মুহূৰ্তত তৎপৰ হৈ পৰিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত সাৰ্চ অপাৰেশ্যন অব্যাহত আছে যাতে কোনো ফালেদি এই সকল কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী পলাই সাৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তীক্ষ্ণ নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে ঘটনাস্থলীত ঘন জংঘলসমূহত ড্ৰোনৰ সহায়ত এই কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী কেইটাৰ অৱস্থান সন্দৰ্ভত গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত সাৰ্চ অপাৰেশ্যন অব্যাহত আছে সেনাৰ পোছাক পৰিধান কৰা ৪ৰ পৰা ৫টা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কালি দিনৰ ২:৩০ বজাত সংঘটিত কৰিছিল সেই বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ড যি সময়ত জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰ্যটন উদ্যোগে পুনৰ গা কৰি উঠিছিল যি সময়ত জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰ্যটন উদ্যোগ থন ধৰি উঠিছিল দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকেৰে ভৰি পৰিছিল জম্মু কাশ্মীৰ যোৱা ২.৫ বছৰৰ ভিতৰত অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিল পৰ্যটকৰ আগমনেৰে আৰু সেই আগমনত বাধা প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে হিন্দু পৰ্যটকক টাৰ্গেট কৰি এই বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে লস্কৰ-ই-তৈবাৰ সংগঠন ভাতৃ সংগঠন ভগ্নী সংগঠন দ্য ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চে স্কেচ আমি দেখুৱাইছো সমান্তৰালকৈ আলোকচিত্ৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা সন্ত্ৰাসবাদীৰ আলোকচিত্ৰ আমি দেখুৱাইছো এয়া হুবহু ৬ লাখ সন্ত্ৰাসবাদীৰ স্কেচ অংকন কৰা হৈছে যিখন আলোকচিত্ৰ আমি ইতিমধ্যে আপোনাক দেখুৱাইছো তাৰ মাজৰ এয়া টিভিৰ বাওপিনে থকা এই কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ আলোকচিত্ৰ ৬ লাখ মিলি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি আকৌ এবাৰ দেখুৱাম সেই আলোকচিত্ৰ এবাৰ স্কেচ আপুনি ভালদৰে চাই লওক প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বিৱৰণ মৰ্মে এই আলোকচিত্ৰ এই স্কেচ অংকন কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ আমি লাইভ আলোকচিত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাম যেটো সন্ত্ৰাসবাদী বন্দী হৈছে হুবহু মিলিছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ স্কেচ কিছু সময় পূৰ্বে আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল সেনাৰ পোছাক পৰিধান কৰা এয়া
কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীটো এই মুহূৰ্তত দেখি থকা সন্ত্ৰাসবাদীটো হুবহু মিলিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ বিৱৰণত অংকন কৰা স্কেচ আৰু লাইভ আলোকচিত্ৰত যিটো সন্ত্ৰাসবাদীক দেখিবলৈ পোৱা হৈছে এয়া আমি দেখুৱাইছো আপোনাক টিভিৰ বাওফালে চাওক আৰু এয়া সোঁফালে চাওক এই কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীটো 6 লাখ মিলিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ বিৱৰণ মৰ্মে অংকন কৰা স্কেচ সম্পূৰ্ণৰূপে মিলি গৈছে আমি দেখুৱাইছো এয়া হৈছে স্কেচ আৰু আনফালে এয়া হৈছে লাইভ আলোকচিত্ৰ য'ত নেকি হাতত উদ্যত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ সেনাৰ পোছাক পৰিধান কৰি কালি পেহেলগামত ভাৰতৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰি এই বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে নৰসংহাৰ এই নৰসংহাৰত জড়িত কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী স্কেচ অংকন কৰা হৈছে এয়া চাওক হুবহু মিলি গৈছে এই কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী স্কেচ আৰু প্ৰকৃত যি আলোকচিত্ৰ তাৰ সৈতে স্কেচৰ সম্পূৰ্ণ মিল দেখিবলৈ পোৱা হৈছে এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব আত্মগোপন কৰি থকা বা পলাই যোৱা এই কেইটা সন্ত্ৰাসবাদীক কেনেদৰে বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় ভাৰতীয় সেনাবাহিনী সকলো তৎপৰতা এই মুহূৰ্তত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ঘন জংঘলত অভিযান চলাই থকা হৈছে সাধাৰণতে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী গোটটো 2019 চনৰ পৰা জম্মু কাশ্মীৰত সক্ৰিয় হৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ অস্থিৰ কৰি তোলা কাম কাজত লিপ্ত হৈ আছে কুটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপত জড়িত হৈ আছে কিন্তু কালি যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া এক সৰ্ববৃহৎ আক্ৰমণৰ ঘটনা হিচাপে বিবেচিত হৈছে সাধাৰণতে জংঘলত অৱস্থান কৰি থাকে জংঘলত লুকাই থাকে এই গোটটোৰ সদস্যসকল আৰু জংঘলৰ পৰা ওলাই আহি এনে ধৰণৰ কুটাঘাত সংঘটিত কৰে আৰু পুনৰ জংঘলত আত্মগোপন কৰে সেই মৰ্মে বৰ্তমান পেহেলগামৰ এই পৰ্যটনস্থলীৰ সমীপৱৰ্তী প্ৰতিটো স্থান য'ত জংঘল আছে তাত চোকা দৃষ্টি ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে মূৰৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে এইসকল কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ কোনো এটা সন্ত্ৰাসবাদী হাৰি যাব নোৱাৰে কঠোৰ শাস্তি কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব এই হুংকাৰ দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু সেই মৰ্মে আজিৰ কেবিনেট কমিটি অন সিকিউৰিটিৰ বৈঠকখন যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে আজি বিয়লিৰ ভাগত সেই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হ'ব তাতেই লোৱা হ'ব বৃহৎ সিদ্ধান্ত সৰ্বদলীয় বৈঠকৰো সম্ভাৱনা চাৰিৰ পৰা 6টাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী লুকাই থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে চোৰাংচোৱাই চাৰিৰ পৰা 6টাকৈ সন্ত্ৰাসবাদী লুকাই থকাৰ তথ্য লাভ কৰি বৰ্তমান অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে সেনা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে যি অভিযানত তদাৰক কৰিছে কিছু সময় পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে হেলিকপ্টাৰেৰে পেহেলগামৰ নৰসংহাৰস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুঠৰ ওপৰত চৌদিশৰ পৰা তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰা হৈছে কোনো ফালেই যাতে কোনো ধৰণৰ খুৰুঙা থাকি নাযায় তাৰ বাবে সমগ্ৰ বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে যথেষ্ট গম্ভীৰ ৰূপেৰে এই সমগ্ৰ বিষয়টো গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে স্কেচ আমি আগবঢ়ালো এই মুহূৰ্তত যি স্কেচৰ সৈতে যিখন আলোকচিত্ৰ পোহৰলৈ আহিছে নিউজ 18ৰ হাতত পৰিছে সেই স্কেচ আৰু আলোকচিত্ৰ 100% মিলি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে হাতত উদ্যত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ আন এটা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ গোপন কেমেৰাত বন্দী হোৱা আলোকচিত্ৰ আমি দেখুৱাইছো কোৱা হৈছে যে দুই এজনে পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু বাকি কেইজনে সেনাৰ পোছাক পৰিধান কৰি হাতত অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ লৈ কলিমা পঢ়িবলৈ কৈ হিন্দু নে মুছলমান প্ৰশ্ন সুধি সেই নৰসংহাৰ চলাইছিল 2023 চনৰ 7 অক্টোবৰ এটা বিভীষিকাময় দিন কুখ্যাত পেলেষ্টাইনৰ সশস্ত্ৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হামাছে ইজৰাইলৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছিল ইজৰাইলৰ শক্তিশালী চোৰাংচোৱা মোছাদক উপহাস কৰি ইজৰাইলৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰি 1200ৰো অধিক লোকক হত্যা কৰিছিল ধৰ্ম সুধি হামাছে হত্যা কৰিছিল ইহুদীসকলক
তথা বিদেশী পৰ্যটকক আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰিছিল 251 জন লোকক পণবন্দী কৰি লৈ গৈছিল অনুৰূপ ধৰণেৰে কালিও এই পাকিস্তান সমৰ্থিত পাকিস্তান মদত পুষ্ট লস্কৰ ই তৈবাৰ ভগ্নী সংগঠন ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চেও ধৰ্ম খুদি এই নৰসংহাৰ চলালে ভাৰতৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰি এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই সমগ্ৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰ্যটনস্থলীসমূহ জনশূন্য হৈ পৰে পেহেলগাম পৰ্যটকেৰে গিজগিজাই থকা যাক ক্ষুদ্ৰ ছুইজাৰলেণ্ড বুলি কোৱা হয় আমি আকৌ এবাৰ আগবঢ়াইছো টিভিৰ স্ক্ৰীনত এয়া কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী স্কেচ আৰু আনফালে প্ৰকৃত আলোকচিত্ৰ এয়া চাওক সম্পূৰ্ণৰূপে দাড়ি থকা এই কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ স্কেচ মিলি গৈছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বিৱৰণৰ ভিত্তিত এই স্কেচ অংকন কৰি উলিওৱা হৈছে ইয়াৰ এটা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আলোকচিত্ৰ নিউজ 18ৰ হাতত দাড়ি থকা এই সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ আলোকচিত্ৰ আৰু স্কেচ সম্পূৰ্ণৰূপে আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে 100% মিলি গৈছে এই ঘটনা তদন্ত কৰিব এনআইএ ন্যাশনাল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেন্সি এই ঘটনা তদন্ত কৰিব পেহেলগামৰ নৰসংহাৰত তদন্ত কৰিব এনআইএ ইতিমধ্যে শ্ৰীনগৰত উপস্থিত হৈছে এনআইএৰ এটা দল দুটা দল ৰাওনা হৈছে ঘটনাস্থলীলৈ এটা দিল্লীৰ পৰা ৰাওনা হৈছে এটা শ্ৰীনগৰৰ পৰা ৰাওনা হৈছে পেহেলগামৰ ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিব এনআইএ তদন্ত কৰিব এই নৰসংহাৰৰ তদন্তত যাতে কোনো ধৰণৰ খুৰুঙা নাথাকে তাৰ বাবে নিৰাপত্তা এজেন্সিসমূহ যথেষ্ট তৎপৰ হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাই ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাই পেহেলগামৰ নৰসংহাৰত তদন্ত কৰিব যাৰ বাবে শ্ৰীনগৰত উপস্থিত হৈছে এটা দল আৰু দিল্লীৰ পৰাও আন এটা দল ৰাওনা হৈছে ঘটনাস্থলীলৈ এয়া এনআইএৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ দৃশ্য আমাৰ হাতত আহিছে আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো হেলিকপ্টাৰেৰে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে এনআইএৰ দলে অনুসন্ধান চলাব তদন্ত চলাব এই নৰসংহাৰৰ স্থানীয় লোক প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ পৰা বহুখিনি তথ্য ইতিমধ্যে লাভ কৰা হৈছে কৰবাত এই ঘটনাত স্থানীয় লোকৰো হাত থাকিব পাৰে নেকি সেই সন্দৰ্ভত তন্নকৈ বৰ্তমান অনুসন্ধান চলাই থকা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনাৰ পাছতে যেহেতু অত্যন্ত এটা দূৰনিবতীয়া স্থান মূল চহৰৰ পৰা কাৰণ তাত গাড়ী নাযায় খোজ কাঢ়িহে তাত যাব পাৰি আনহাতে পেহেলগামৰ এই ঘটনাৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড সাইফুল্লাহ খালিদ বুলি জানিব পৰা হৈছে এইজন হৈছে সাইফুল্লাহ খালিদ সাইফুল্লাহ কাশুৰী নামেৰেও জনাজাত লস্কৰ ই তৈবাৰ এইজন শীৰ্ষ নেতা উপমুখ্য লস্কৰ ই তৈবাৰ উপমুখ্য এইজন সাইফুল্লাহ খালিদ লস্কৰ হৈছে শীৰ্ষ সেনা প্ৰধান সাইফুল্লাহ খালিদ লস্কৰ ই তৈবাৰ ভগ্নী সংগঠন দ্য ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চৰো নেতা এই দুই দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী পুনৰ জনাইছো এই দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী সাইফুল্লাহ খালিদৰ নেতৃত্বতে সংঘটিত হৈছিল নাৰকীয় ঘটনা 26 জন নিৰীহ লোকৰ প্ৰাণ লৈছিল 6 সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পূৰ্বৰ পৰা পৰিকল্পিত আছিল টিআৰএফে সংঘটিত কৰা এই বৰ্বৰ ঘটনা আৰু এয়া আমি ইটানগৰৰ এটা পৰিবেশ আপোনাক দেখুৱাইছো অৰুণাচলৰ এজন যুৱক এই নৰসংহাৰত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এই নৰসংহাৰত প্ৰাণ হেৰুৱা 26 জনৰ ভিতৰত আছে অৰুণাচলৰ তাগে হালিয়াং নামৰ লোকজন বায়ুসেনা বিভাগত কৰ্মৰত আছিল পত্নীৰ সৈতে পেহেলগামৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ গৈছিল তাগে হালিয়াং
মঙলবাৰে বিয়লি হঠাৎ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পেহেলগামত বৰ্বৰভাৱে চলোৱা এই গুলীচালনাৰ ঘটনাত মৃত্যু হোৱা 26 জনৰ ভিতৰত তাগে হালিয়াঙো আছে। বায়ুসেনা বিভাগৰ প্ৰশাসনীয় সহযোগী ৰূপে কৰ্মৰত আছিল অৰুণাচলৰ তাগে হালিয়াং। সন্ত্ৰাসবাদীৰ এই আক্ৰমণৰ ঘটনাত স্বামী সন্তা চাৰু কামহুৱা সম্প্ৰতি সুস্থ। অৰুণাচলৰ জিৰত ঘৰ তাগে হালিয়াঙৰ। देखिए, आज आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पे सपोर्ट किया है जम्मू बंद कॉल को। बात आम आदमी पार्टी अकेली नहीं सपोर्ट करने वाली, पूरे जम्मू कश्मीर का एक एक शख्स, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, आज सब हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जम्मू एकता बताई है और हमने यही बात कही है कि मोदी जी अगर आपकी सिक्योरिटी फोर्स में लैप्स हुआ है, डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए और हम जैसे लोगों को AK-47 दी जाए, इस्लामाबाद में हम लोग झंडा लहराएंगे हिंदुस्तान का। हम दम रखते हैं। अगर आतंकवादियों को सपोर्ट करने वालों को गोली से ना उठा दिया तो ये जम्मू कश्मीर के वासी नहीं, हिंदुस्तान के हम वासी नहीं। देखिए, गुस्सा है बहुत ज्यादा और आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले लोगों के खिलाफ भी गुस्सा जताया गया है। रोड जगह जगह बंद हो चुके हैं, जगह जगह जो है ये जो वर्कर्स हैं, चाहे विभिन्न पार्टियों के हैं, चाहे वो सियासी सामाजिक संगठनों के हैं, दुकानें बंद रखी गई हैं। कंप्लीट जम्मू बंद और खुद से जम्मू के लोगों ने आज जम्मू को बंद रखा है। कंप्लीट बंद आज हम कहेंगे जम्मू में किया गया है। कोई भी जो वाहन है, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो भी चलता हुआ दिखाई नहीं दिया। आज जगह जगह प्रोटेस्ट हुए हैं। कोई ऐसा इलाका नहीं है जम्मू सिटी का जहां पे आज प्रोटेस्ट नहीं किया है। हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उन ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जिन्होंने देश को इतना घाव पहुंचाया है, क्योंकि ये निहत्थे हिंदुओं को जो है निशाना बना के कहीं ना कहीं ये एक संदेश देने की कोशिश की गई है, डराने की कोशिश की गई है। और इनसे जानेंगे क्या मांग करते हैं, पाकिस्तान मांग करते हैं। देखिए, आए दिन कायराना हरकतें जम्मू के अंदर देखने को मिल रही। जिस तरीके से कश्मीर में आतंकी हमले होते रहे, आज जम्मू के अंदर आए दिन जो है ये हमले देखने को मिले। जिस तरीके से हमारे नौजवान, हमारे फौजियों को जिस तरीके से पुलवामा के अंदर एक साजिश से, एक बनाई हुई तय साजिश से इन्होंने जो है मौत के घाट उतारा, उन्हें शहादत दिलवाई, उसी तरीके का हिंदुओं के ऊपर जो है अत्याचार हुआ। हिंदुओं के आई कार्ड देख देख के हिंदुओं को मारा गया। बच्चों को, महिलाओं को, छोटे साथियों को किस तरीके से मौत के घाट उतारा गया। ये आतंकवाद और अलगाववाद जो यहाँ पे देश के अंदर पनाह देने वाले साथ जो लोग हैं, जो इस तरीके से मानसिकता रखने वाले लोग हैं, इन्हें मौत के घाट उतारने का काम जो है ये सरकार को करना चाहिए। लेकिन इस सरकार की, आप मुझे बताएं कि इस वक्त सभी को सभी इकट्ठे हैं और एक ही मांग है कि इस तरह के जो आतंकवादी हमले हैं वो बंद होने चाहिए। बिल्कुल इस तरह के आतंकवादी हमले बंद होने चाहिए। जब से ये सरकार हर बार हिंदुओं को प्रायोरिटाइज कर दिया कि हिंदुओं की सरकार है, लेकिन ये हमारे हिंदुओं भाइयों पर आतंकवादी हमले को रुकवाने में अभी तक नाकामयाब है। अभी कुछ देर पहले आप क्या कहेंगे? तो देखिए कि सभी सामाजिक संगठन जो है वो यहाँ पे हैं और प्रोटेस्ट जो है जगह जगह पे हुए हैं। एक ही मांग, और ऐसे प्रोटेस्ट हमने पहले पुलवामा में जब हमला हुआ था, जब जवान जो है 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे, तब देखे गए थे। उसके बाद अब इस तरह के प्रोटेस्ट जगह जगह जो है हर एक मोहल्ले में, हर एक जगह पे जम्मू के जो है वो हो रहे हैं। क्या मांग करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक ही मांग है। जिन लोगों ने आज, जिनकी वजह से आज जम्मू कश्मीर में ये हालात बने और पूरे हिंदुस्तान में जो सैलानी यहाँ घूमने आए थे अपने परिवारों से, और आज दुख की बात है कि वो डब्बों में बंद होके जा रहे हैं। ये मातम का जो माहौल है वो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में है। तो हम ये चीज़ बिल्कुल कहेंगे कि जिन लोगों के इसके पीछे थे उन लोगों को इसकी सजा जो है मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जब आप रिटायर होंगे, क्या आप इस दिन को बताएं कि आज इस दिन को बेहतरी बात जरूर कहना चाहूंगा, क्या आप इस दिन को, काला दिन को, आप अपनी इस चीज को कब तक सीने में दबा के रखेंगे कि आपके प्रधानमंत्री? लगता है कि आज किस तरह की कार्रवाई चाहेंगे आप? देखिए, कार्रवाई हम ये चाहेंगे कि इस तरीके के हादसा कभी भी फ्यूचर में जो बड़े बड़े दावे किए गए उस तरीके का ना हो। हम इस तरीके की चाहेंगे। और जम्मू कश्मीर की आवाम की इसी वक्त अपनी जो सेंटर में मरकज सरकार है उससे यही अपील है कि ये जो इस तरीके की दहशतगर्दी है, इसको जो वो वादा करते हैं कि हमने खत्म किया, वाकई में उसको खत्म करें, जाके क्या कहेंगे? ना जाए।
देखिए ये सब ऑटो यूनियन वाले लोग हैं, जो ई रिक्शा यूनियन है वो भी, हर कोई संगठन हो, चाहे वो छोटा संगठन है, बड़ा संगठन है, बड़ी पार्टी है, छोटी पार्टी है, सभी आज जो है इकट्ठे हुए हैं। जगह जगह पुतले बिल्कुल। আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছো জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ৰাজনৰ এক্সক্লুসিভ ৰিপৰ্ট, গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট। প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কৈছে যে তেওঁলোকে ন্যায় বিচাৰিছে, সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল হোৱাটো বিচাৰিছে, মোদী চৰকাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো বিচাৰিছে আৰু এনেদৰে ৰাজপথত প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰিছে। প্ৰতিবাদত এনেদৰে অৱস্থান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰীক। এয়া প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে উত্তাল হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজপথ। আৰু এয়া এক্সক্লুসিভ আলোকচিত্ৰ নিউজ 18ৰ পৰ্দাত আমি দেখুৱাইছো এক্সক্লুসিভ আলোকচিত্ৰ। 4টা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী উদ্যতম মাৰণাস্ত্ৰ লৈ সেনাৰ পোছাক পৰিধান কৰা এই 4টা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আলোকচিত্ৰ আমাৰ হাতত। এয়া নিউজ 18ৰ পৰ্দাত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এইসকল পৰ্যটকে এইসকল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কালি পৰ্যটকৰ ওপৰত চলাইছিল নৰসংহাৰ। এইকেইটা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী এক্সক্লুসিভ আলোকচিত্ৰ নিউজ 18ৰ হাতত। 4টাকৈ ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চৰ এই সন্ত্ৰাসবাদীৰ ফটো আহিছে নিউজ 18ৰ হাতত। প্ৰথমে অংকন কৰা স্কেচ আমি দেখুৱাইছিলোঁ, তাৰপিছত এটা সন্ত্ৰাসবাদীৰ ফটো আমাৰ হাতত আহিছিল আৰু এইবাৰ 4টাকৈ কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আলোকচিত্ৰ আহিছে নিউজ 18ৰ হাতত। আমি সেই আলোকচিত্ৰ আকৌ আগবঢ়াম। সমান্তৰালকৈ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈছে এই মুহূৰ্তত জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজপথ। হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ, হাজাৰ হাজাৰ লোক এনেদৰে ওলাই আহিছে, ৰাজপথত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে কঁপাইছে আকাশ বতাহ। এয়া আক্ৰমণকাৰী 1, 2 আৰু 3ৰ স্কেচ আমি দেখুৱাইছো। নাৰকীয় ঘটনাৰ আঁৰত এই 3টা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী। সমান্তৰালকৈ আলোকচিত্ৰ আহিছে আমাৰ হাতলৈ। আমি সেই আলোকচিত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাম। নাৰকীয় ঘটনাৰ আঁৰত জড়িত আছিল এইকেইটা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী। লস্কৰ ই তৈবাৰ ভগ্নী সংগঠন দ্য ৰেজিষ্টেন্স ফৰ্চৰ এই 4-5টা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল। ইয়াৰ মাজৰ 3টা সন্ত্ৰাসবাদীৰ স্কেচ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ বিৱৰণৰ ভিত্তিত বিশেষজ্ঞই অংকন কৰি উলিয়াইছে। আক্ৰমণকাৰী 1, আক্ৰমণকাৰী 2, আক্ৰমণকাৰী 3। সমান্তৰালকৈ আমি দেখুৱাম আপোনাক 4টা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আলোকচিত্ৰ। এয়া হৈছে এই 4টা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আলোকচিত্ৰ। এয়া নিউজ 18ৰ পৰ্দাত এক্সক্লুসিভ আলোকচিত্ৰ আমি দেখুৱাইছো আপোনাক। ফাৰ্ষ্ট অন নিউজ 18। এই কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী কেইটাই কালি চলাইছিল নৰসংহাৰ। পৰ্যটকৰ তেজেৰে ফাকু খেলা এই কুখ্যাত 4টা সন্ত্ৰাসবাদীৰ আলোকচিত্ৰ এই মুহূৰ্তত নিউজ 18ৰ হাতত। আলোকচিত্ৰ এয়া চাওক, আলোকচিত্ৰ সমান্তৰালকৈ স্কেচ আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। সম্পূৰ্ণৰূপে মিলি যোৱা এই স্কেচ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো আপোনাক। প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বিৱৰণৰ ভিত্তিত বিশেষজ্ঞই অংকন কৰা এই স্কেচ আৰু সমান্তৰালকৈ এয়া প্ৰকৃত আলোকচিত্ৰ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে এই 4টা কুখ্যাত নৰপিশাচৰূপী সন্ত্ৰাসবাদীক। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি জম্মুৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ৰাজনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। राजन, इस वक्त आप कौन सी जगह पर मौजूद है, कौन कौन वहां प्रोटेस्ट कर रहा है, विस्तारित रूप से बताइए। देखिए इस वक्त मैं जम्मू के दिल के जीवल इलाके में मौजूद हूं और चाहे जम्मू का कोई भी कोना हो, चाहे कोई भी इलाका हो, आज हर जगह पे लोगों का गुस्सा फूटा है। लोग काफी गुस्से में इसलिए हैं कि निहत्थे जो सैलानी थे, यहाँ पे टूरिस्ट थे, उनको निशाना बनाया गया है। इससे देश में जो है काफी उबाल है, काफी गुस्सा है। और मेरे पीछे भी आप देख पाएंगे कि जो सामाजिक सियासी जितने भी संगठन हैं, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, सबकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है। क्या कहेंगे इस आतंकवाद जो पिछले 3 दशक से ज्यादा समय हो चुका है, हम उसको झेल रहे हैं, पाकिस्तान जो है बाज नहीं आ रहा। आज जम्मू सूबे के अंदर जिस तरीके से आतंकवाद दिन ब दिन
चरम सीमा पे बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे एजेंसीज फेलियर हो चुकी है। यहाँ पे पुलिस और पैरामिलिट्री मिलिट्री जो है, सेनाएं जो है हमारी, उन्हें समझ नहीं आ रही आतंकवाद है कहाँ पे है। इनके रूट्स इतने डीप हो चुके हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश इस स्टेट के लिए, इस यूटी के लिए की जा रही है। जिस तरीके से आपने देखा कठुआ के अंदर शहादतें हुई और अभी 4 दिन नहीं हुए इन शहादतों को, और हमारे दिल पे कितनी आग जल रही है इसका अंदाजा सिर्फ हम लोग जानते हैं। और सेंटर में बैठी हुई सरकार जिस तरीके ठीक है, सरकार आज सारे संगठन इकट्ठे आए हैं, आज सियासत की कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे आप एक चीज बताएं, ठीक है, मुझे एक चीज बताएं कि पाकिस्तान जो है वो लगातार 3 दशक से कई गवर्नमेंट आई, हर गवर्नमेंट को मौका मिला लेकिन नहीं हो पाया है। लेकिन अब पाकिस्तान को एक ही दफा जो सबक सिखाने की बात, पाकिस्तान को जवाब कौन देगा? इसीलिए तो हम सरकार कहते हैं। सरकार में बैठे हुए लोग जो 56 इंच का सीना लेके आए थे, वो जवाब देना, हम साथ हैं, वो जवाब क्यों नहीं देते? तो अगर आप सरकार के लिए बोलते हैं तो सरकार अभी जो है वो हमारी सरकार है, वो किसी चुने हुए एक पार्टी की सरकार नहीं है, इस देश की सरकार है। तो देश की सरकार जो है वही यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सिबल है सिक्योरिटी के लिए। जो सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आम आदमी को मारना, एक निहत्थे लोगों को मारना, ये कितना संवेदनशील है? ये इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए उतनी कड़ी निंदा करनी चाहिए। और ये कायरता के साथ जो हमला किया गया है, हम इसकी जितनी निंदा करें कम है। लेकिन यहाँ पे जागेगा कौन? सरकार जागेगी, और सरकार तब जागेगी। आज कह रहे हैं स्केच बना दिए, स्केच बनाना या उनके स्केच दिखाना ये हमारा जो है मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है जो इनके साथ इन्वॉल्व है, जो लोग आतंकी हमलों में शामिल होते हैं, उन्हें मौत के घाट उतारो। देखिए जो आतंकी हमलों में जो है शामिल हो, जी राजन, काल की ये जो हादसे है, ये हादसे के बाद जम्मू कश्मीर बंद घोषणा किया गया था, तो बंद का असर कैसे देखने को मिल रहा है जम्मू शहर में? देखिए जम्मू संभाग हो चाहे कश्मीर संभाग हो, आज जो पुलवामा में अटैक हुआ था, जब 40 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद ये सबसे बड़ा जो अटैक हुआ है जो निहत्थे सैलानियों पे, टूरिस्ट पे हुआ है। उसके बाद जाहिर सी बात है वापस एक मांग उठी है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, यानी कि सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से ज्यादा बढ़ के कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ये जो प्रॉब्लम है, 30 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद को झेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में उनका कहना है एक दफा इसका इलाज, सबक सिखाया जाए पाकिस्तान को, जिससे वापिस जो है इस तरह की हरकत ना हो पाए। और आज गृह मंत्री इस वक्त कश्मीर घाटी में है और देश के प्रधानमंत्री भी वापिस आ चुके हैं जिद्दा से। तो लोगों की ये मांग है कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि जिससे कि इस आतंकवाद को जम्मू कश्मीर से हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। उसी के चलते आज चाहे कोई भी संगठन हो, सब सड़कों पे है और सब ने अपना प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च किया है। जी बंद के कारण जो टूरिस्ट का आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ असर पड़ रहा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो कश्मीर घाटी से जो टूरिस्ट काफी संख्या में यहाँ से निकले भी हैं, क्योंकि लोग काफी सहमे हुए हैं, सदमे में हैं। वापस जम्मू कश्मीर के हर एक जगह पे हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि हालांकि ये पहलगाम में हमला हुआ है लेकिन खदशा ये बना हुआ है कि कहीं ये ऐसा ना हो, कहीं अन्य जो पिकनिक स्पॉट हैं, जो कहीं अन्य जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ भी इसी तरह के अटैक ना हो टूरिस्ट पे। तो इसी के चलते हाई अलर्ट घोषित किया गया है और वहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। आज देश के गृह मंत्री उस इलाके में भी पहुंचे जिस इलाके में कल जो है निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया। और आज जो है जम्मू के और कश्मीर घाटी के, और ना बल्कि जम्मू के विभिन्न जिले हैं, चाहे वो कठुआ है, चाहे वो सांबा है, सभी जिलों में प्रोटेस्ट किए गए हैं और हर एक की भावना को ठेस पहुंची है। उनका कहना है क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा जो सैलानी हैं वो जम्मू कश्मीर हर साल आते थे, लेकिन इस घटना से जो है उसमें भी इफेक्ट आ सकता है। बाबा अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाली है। जी राजन, ये जो तमाम लोग अभी रास्ते पे आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहा है, क्या मांगे हैं? फिर से उनसे जानिए क्या मांगे हैं उन लोगों का, क्या जवाब दिया जाए, करारा जवाब कैसे दिया जाए? जैसे कि 2016 में उरी हमले का जवाब दिया था सर्जिकल स्ट्राइक से, जैसे कि 2019 में पुलवामा हमले का अटैक जवाब दिया था
एयर स्ट्राइक से, तो कैसा चाहिए, मतलब जवाब कैसे देना चाहिए? और ये रोज एक आए दिन में यहाँ पे देखने को मिलता है, एक सिविलियन किलिंग होती है और टारगेटिंग किलिंग जो होती है, इसको रोकने का काम जो है ये सरकार करे। इस तरीके से, जिस तरीके से पहले जहां पे आपने देखा जम्मू सूबे में एक लंबे अरसे तक आतंकवाद जो है दूर दूर तक नजर नहीं आता था, लेकिन आज अगर ये सरकार आतंकवाद और उनके समर्थनों को मारने का काम करती है, हम इनके साथ हैं, युवा इनके साथ है। आप क्या कहेंगे? पॉलिटिक्स जो निहत्थे लोगों की हत्या हुई उस पे बोलिए। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा जो कल 2:30 बजे पहलगाम में, जिसे हम भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, उसमें ऐसा निहायती हमला आतंकवादियों द्वारा किया गया है और वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस शाम 7 बजे पहुंचती हैं। सरकार को चाहिए कि वहां पे पहले ही सिक्योरिटी की तैनाती की होनी चाहिए पहले, क्योंकि आपको पता है काफी संदिग्ध इलाका है कश्मीर, लेकिन फिर भी सरकार के कान तक जू नहीं रेंगती। हर बार सरकार यही बोलती है कि हमने आतंकवाद खत्म कर दिया, आतंकवाद खत्म कर दिया, लेकिन पिछले कुछ समय से, अभी कुछ समय पहले जो शिवखोड़ी से बस जिसमें काफी सारे टूरिस्ट थे, उसमें 9 हमारे यात्रियों की शहादत हुई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो हिंदू नहीं थे? वो भी हिंदू थे। आज भी जो मरे हैं वो भी हिंदू थे और वो टारगेट किलिंग करके वो हिंदू को ढूंढा गया और मारा गया। क्या इसे जम्मू का युवा गुस्सा है, कश्मीर का युवा गुस्सा है, पूरे भारत का युवा गुस्सा है? और ये जवाबदेही सरकार की है, हमारे होम मिनिस्ट्री की है, हमारे एलजी प्रशासन की है। क्या कहेंगे? हम चाहते हैं कि अब ये मीटिंग का सिलसिला बंद हो और गोली का जवाब गोली से दिया जाए, ताकि उनकी पुश्तैनी आगे तक की जो आबादी है उनको भी समझ आए कि ऐसे काम नहीं करने हैं। तो देखिए कि ऐसे काम नहीं करने हैं और कई सामाजिक संगठन जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उनका गुस्सा है, उनका कहना है कि एक दफा ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि वापस जो है पुश्ते भी ऐसा नुकसान ना पहुंचा पाए। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो राजन जी मैं ये कहूँगी कि हमारे जम्मू कश्मीर का ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो गया, जहाँ पे इतने बड़े सैलानी गए हुए थे, तो वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जहाँ पे किसी बंदे ने उनको बचाने की कोशिश ही नहीं की गई है। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जब आपने भी वो पिक्चर देखी होगी ना, जो हमारी बहन बेचारी बेटी जिसके हाथों की अभी मेहंदी भी नहीं लथी, जहाँ पे नेवी का ऑफिसर, उसका इंडियन आर्मी के ऑफिसर भी सेफ, तो हम लोग कहाँ पे आम सेफ है। तो दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि हमारे होम मिनिस्टर जी दिल्ली में श्रीनगर में गए हुए हैं, तो वो तब तक वापस नहीं आए जब तक पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहना चाहिए। अगर हमारे 30 मरे, उनके 30,000 मिलने चाहिए, पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहना, कुछ तो कुछ करके दिल्ली में वापस आए, तभी हमारी शहादत का बदला शहादत, हमें इंसाफ मिलेगा, हमारे लोगों को इंसाफ मिलेगा। ये एक जम्मू कश्मीर में रोष नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में आए एक शोक की लहर है। वो जहाँ आप बोलते हो कश्मीर हमारा जन्नत, वहां पे हमने जन्नत बना दिया। तो क्या ऐसे बोल नहीं सकते कि जो बच्चे छोटे छोटे, जाहिर सी बात है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। उसके लिए यही कहना चाहते हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं इनको माफ करना चाहिए कि पाकिस्तान के ऐसे दरिंदों को मैं बोलती पकड़ पकड़ के ऐसा चुराए पे हमारे पास कभी मिले ना, उनके पीस पीस करके जलाने चाहिए इधर, कि उन्होंने इतनी गंदी हरकत की है। और पाकिस्तान का होम मिनिस्टर बोलता है ये हमारी हरकत नहीं है। वो कैसे बोलता है कि हमारी हरकत नहीं है? उनको शर्म आनी चाहिए। चुल्लू पर इंसानियत का कत्ल कर रही हो, इंसाफ कहाँ है? क्या आपके दिल में जिंदा इंसानियत ही मर गई है? किस गीता में लिखा, कुरान में लिखा, ग्रंथ में लिखा कि आप किसी शरीफ लोगों का, निहत्ते लोगों का मरम हत्या कर दो इन लोगों की? इसके लिए मैं कहना ये चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनको शहादत के बदले उनकी शहादत लेनी चाहिए। हमारी इंडियन आर्मी इतनी कमजोर नहीं है, हमारी इंडियन आर्मी पर हमें गर्व है। वो इनका खून के बदले खून लेना ही है, चाहे कुछ भी होगा। और उन बहन को क्या देखो, उनको पूछ कर बोला, लेडीज ने बोला मुझे भी गोली मार दो, आपको गोली नहीं मारनी, उनको या तो आपने सभी को खत्म करना था ना, जो क्या दुख देखने के लिए उनको छोड़ा है। आप जहाँ तो इनके साथ इंसाफ नहीं कर सकते हो। कैसे हमारे जो बैठे हुए हैं, क्या आम गरीब जनता मर रही है? ये कोई धर्मशाला थोड़ा है हिंदुस्तान हमारा कि जहाँ पे जो आएगा वो हमारे ऊपर राज करके कुत्तों की तरह लोगों को घसीट के मार रहे हो आप, फायरिंग अंधाधुंध गोलियां कर रहे हो। हम बोलते हैं इसके लिए संज्ञान लेना पड़ेगा। चाहे जो आपने बड़े बड़े रफेल खरीदे हुए ना, वो इस वक्त जूस करने चाहिए, पाकिस्तान का नामो निशान मिटाना चाहिए। हमारे होम मिनिस्टर जी दिल्ली से तभी वापस आए जब तक जो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा।
हमें होम मिनिस्टर पे भी गर्व है और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स है उसके पे भी गर्व है। हिंदुस्तान अब होम मिनिस्टर के साथ सभी के साथ खड़ा है। हम यही कहेंगे जो हमारे लोगों के साथ इन्होंने किया, हम बावजूद उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम सभी लोग आए हुए हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग आए हुए हैं और सभी लोग जो है चाहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह घाटी गए हैं, कश्मीर घाटी, और वहां से कुछ ऐसा पाकिस्तान को सबक सिखा के वापिस आए जिससे कि शहादत का बदला जो है, गोली का बदला गोली से लिया जाए। इस तरह की मांगे अब जम्मू में उठी हैं। जी राजन, हम फिर से आपसे जानना चाहेंगे आपके पास और क्या क्या जानकारी है जम्मू के अलावा, और कौन से दूसरे जिलों में बंद का प्रभाव या असर देखने को मिल रहा है? देखिए, जम्मू के अलावा कटरा है माता वैष्णो देवी का आधार, जहां से यात्रा शुरू होती है। उसके साथ साथ कठुआ का इलाका है, पुंछ है, राजौरी है। तमाम जिले, यानी कि जम्मू कश्मीर के अगर 20 जिले हैं, 22 जिले हैं, सब जगह पे जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सब जगह जो है आज लोगों की तरफ से, विभिन्न सामाजिक संगठनों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है, गुस्सा जताया गया है और ये मांग उठाई गई है कि अब नहीं तो कभी नहीं, अब वक्त आ चुका है। क्योंकि पुलवामा के वक्त हमने सबक सिखाया था पाकिस्तान को, सर्जिकल स्ट्राइक किया था, एरियल स्ट्राइक भी किया था, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब अंतिम दफा, एक दफा जो है सबक सिखा दिया जाए, वापस पाकिस्तान की रूह भी काम पे। इस तरह के कदम उठाने के लिए उससे स्पॉन्सर्ड जो आतंकवादी हैं वो इस तरह की घटनाओं को कभी अंजाम न दे पाए। और देख सकते हैं कि इनका जो प्रोटेस्ट है लगातार चलते हुए, विभिन्न लोग जो हैं संगठन आज सड़कों पे हैं और उनका गुस्सा इसी बात पे है कि निहत्थे लोगों को क्यों मारा, हिंदू पूछ के क्यों मारा, और ये चेक किया गया आइडेंटिटी को। हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी। हम ये भी बताना चाहते हैं कि कुछ दिनों में अमरनाथ यात्रा भी स्टार्ट होने वाली है और हम चाहते हैं कि आगे जो हो गया सिक्योरिटी लैब्स आगे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आने वाली है। और मैं इसी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मीटिंगों का सिलसिला जो आए दिन हम देखते हैं, कभी डीजीपी को दिल्ली बुलाया जा रहा है, कभी किसी को बुलाया जा रहा है, वो खत्म होना चाहिए और गोलियों का सिलसिला जो है गोलियों से ही खत्म होना चाहिए। क्या बोलेंगे आप? ये जो अमरनाथ यात्रा को भंग करने का कार्य जो इन आतंकवादियों ने किया है, मैं चाहता हूँ ये जो भंग करने का कार्य इन्होंने किया है, इनको अच्छी तरीके से जवाब दिया जाए और इनको चुन चुन के मारा जाए। बस चुन चुन के इनको मारा जाए, यही मांग हर गली हर कूचे से उठ रही है। जी भारत माता की जय। जी राजन, जो टूरिज्म सेक्टर, जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म सेक्टर, ये टूरिज्म सेक्टर को एक नया माइलेज मिला था। बहुत सालों के बाद एक नया माइलेज मिला था। टूरिस्ट का जो फ्लो था वो रिकॉर्ड बनाया था, नया रिकॉर्ड बनाया था। तो उस टूरिज्म सेक्टर पर एक बड़ा असर काल के हादसे के बाद मिल रहा है। भारत माता की जय। बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले कुछ सालों में टूरिज्म सेक्टर में काफी उछाल आया था। काफी संख्या में जो टूरिस्ट हैं, चाहे वो बाबा अमरनाथ के लिए, माता वैष्णो देवी के लिए, कश्मीर घाटी घूमने जाने के लिए लगभग 2 करोड़ से ज्यादा जो सैलानी टूरिस्ट हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे थे। और इससे जो है पाकिस्तान में बौखलाहट आई और पाकिस्तान को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि किस तरह से यहाँ पे तरक्की हुई। विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के जब चुनाव आए और सफलता से हो गए, यहाँ पे हुकूमत बन गई, सरकार यहाँ पे बन गई, उससे बौखलाहट और ज्यादा तेज हो गई। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर को नुकसान पहुंचाने की मंशा के साथ, इस कोशिश के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि 3 जुलाई से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। वहां पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और उन श्रद्धालुओं में कहीं न कहीं खौफ पैदा करने के लिए, डर की भावना पैदा करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है, इस तरह के आतंकवाद के सामने भारत नहीं झुकेगा, मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। और जिस तरह से युवा यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गुस्सा जता रहे हैं, इससे साफ हो जाता है कि ये प्रोटेस्ट थमने वाले नहीं हैं, ये रुकने वाले नहीं हैं। इसी तरह से ये प्रोटेस्ट चलते रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। ये लोग शांत होने वाले नहीं हैं, ये लोग चाहते हैं कि कड़ी कार्रवाई जो है पाकिस्तान के खिलाफ हो। क्या कहेंगे? ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। जो अटैक किया गया है यहाँ पे हमारे कश्मीर में, जो
आम लोगों की जान गई है, ये आगे से ना होना चाहिए। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस पे ध्यान दे बस। क्या कहेंगे आप? मैं पहले भी ये बात बोली है, अभी भी ये बोल रहा हूँ, जो अमरनाथ यात्रा को इन्होंने टारगेट करा है, जो आने वाले वक्त में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उनको ये टारगेट किया है। मैं यही चाहूँगा ये अलगबाद और आतंकवाद को करारा जवाब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन दे। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही शर्मसार बात है जो कि पाकिस्तान की हर बार से कायराना हरकत करता है, और इस बार हर एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की हम मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि जो कि होनी चाहिए, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए इसका, जो कि हर बार उनकी कायराना हरकत, कभी कश्मीर में, कभी कठुआ में, कभी हीरानगर में, कहीं ना कभी डोडा में, हर बार बेगुनाह टारगेट के लिए आई कार्ड देके वहां पे जो कि धर्म देके वहां पे हत्या की जा रही है। ये बहुत ही शर्मसार बात है, गवर्नमेंट को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आप देखते हैं जो टूरिज्म हमारे यहाँ पे बढ़ा, उससे भी पाकिस्तान में बौखलाहट है। देखिए, सिक्योरिटी होगी तो टूरिज्म होगा। देखिए, टूरिज्म 2 करोड़ से ज्यादा जो सैलानी पहुंचे, अब उनमें भी कहीं ना कहीं खो पैदा होगा। मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी होगी तो टूरिज्म होगा। टूरिज्म तब आता है जब वहां पे पीस हो, वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अगर इस तरीके का माहौल रहा तो कौन जम्मू कश्मीर में आएगा? जम्मू के लोग भी श्रीनगर जाना पसंद नहीं करेंगे। और आज तो इतना डर है कि हमें लगता है कि जम्मू के अंदर भी इस तरीके की कायराना हरकत कभी भी हो सकती है। कठुआ हो गई, सांबा हो गई, हीरानगर हो गई, और कई जगहों पे हो रही है। तो इस तरीके से जो है इसको रोकना चाहिए। और वो इतना बड़ा टूरिस्ट हब है पहलगाम, और वहाँ पे आपने देखा कि 2:30 बजे वहाँ पे जो है ये मिलिटेंट अटैक होता है, और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का ना होना, पुलिस का ना होना, मैं समझता हूँ उससे भी बड़ी शौक की बात है। इतना बड़ा टूरिस्ट हब होने का, कश्मीर का सबसे बड़ा टूरिस्ट हब पहलगाम को माना जाता है, और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का ना होना, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी वहाँ पे नेग्लेंसीज है सिक्योरिटी फोर्सेस की, वहाँ के रॉ की, वहाँ की IB की। आप मुझे एक चीज बताएं कि जिस तरह से टूरिज्म वहाँ पे बढ़ा, और उससे भी पाकिस्तान में एक बौखलाहट सी पैदा हो गई है। वही तो उन्होंने साजिश खेली है ना ऐसा करने के लिए। तो जी कब तक जुल्म सहते रहेंगे हम? कभी आर्मी पे, कभी पुलिस पे, कभी निर्मम हत्या हमारे लोगों की, जिनका कुछ कसूर ही नहीं, बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है। इसके ऊपर अब सरकार को चुप नहीं बैठना चाहिए। हिंदुस्तान की जो हमारे होम मिनिस्टर, अब कुछ तो कुछ करके आना चाहिए, इनको सबको सिखा के ही आना चाहिए। कब तक आप हाथों में कैंडल लेके निकालते रहोगे? कब तक आप टायर जलाओगे? कब तक यही करते रहेंगे? इन लोगों को पाकिस्तान को शर्म ही नहीं है। इनकी पाकिस्तान का नामो निशान खत्म करना चाहिए। ऐसे दरिंदों को कभी बख्शना ही नहीं चाहिए। तो मैं यही कहती हूँ कि उनके परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए। जब तक उनके परिवारों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हमारे लोग चुप बैठने वाले नहीं है। हमें ना चुप बैठना है, उनके लिए हमने इंसाफ मांगना ही मांगना है। और मैं उनको बाबूर दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, और उनके परिवारों के साथ हम करें। तो श्रद्धांजलि जो है लोग जी राजन, कश्मीर में जो हादसा हुआ है उसका आतंक, ये बात साफ है कि कश्मीर का जो आतंक वो पूरी जम्मू तक फैल चुका है। तो इस वक्त सिक्योरिटी में कैसा असर देखने को मिल रहा है जम्मू में? देखिए, हाई अलर्ट घोषित किया हुआ है, जगह जगह पे जो है इस वक्त तैनाती कर दी गई है। लेकिन लोगों का एक सवाल ये भी है कि जब एक पिकनिक स्पॉट है, एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी जो हल्का नहीं था, सिक्योरिटी ऑफिसर्स नहीं थे, पुलिस की तैनाती नहीं थी, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यदि यहाँ पे टूरिज्म तभी आएगा जब यहाँ पे शांति होगी, पीस होगा। तो ऐसे में जिस तरह से वहाँ पे काफ़ी संख्या में टूरिस्ट मौजूद थे, और ऐसे में उनकी सिक्योरिटी के लिए ना कोई पुलिस वाले थे ना कोई थे, उस पर भी सवाल जो है वो अभी लगाए गए हैं लोगों की तरफ से। लेकिन आपने सही कहा कि जिस तरह से देखिए जम्मू से लेके कश्मीर तक आतंकवाद फैल गया है। पहले कश्मीर घाटी तक सीमित था, लेकिन बीच में कश्मीर घाटी में ठीक हुआ, जम्मू सूबे में, जम्मू रीजन में ज़्यादा फैला, और यहाँ जगह जगह जो है आतंकवादी घटनाएं पेश आने लगी। लेकिन अब वापस जो नत्थे लोगों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले हमने देखा कि जो आतंकवादी निशाना बनाते थे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ही उनके जो है मुठभेड़ होती थी। लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट टारगेट को चुना गया है, यानी कि निहत्थे लोगों को चुना गया है। ये चिंता का विषय है, क्योंकि निहत्थे लोग जो टूरिस्ट हैं वो उनके पास कोई वेपन तो होते नहीं है, वो निहत्थे होते हैं, घूमने आए होते हैं देश के कोने कोने से, उनको वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं, उनको कोई भी जाके निशाना बना सकता है। तो ऐसे में जो जिस तरह से पाकिस्तान ने ये नापाक हरकत को अंजाम दिया है, इससे लोगों में गुस्सा है। उनका कहना है कि ये कायर हैं, कॉवर्ड हैं, क्योंकि इन्होंने निहत्थे लोगों को निशाना बनाया है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला करने की ताकत इनमें नहीं है, जिसके चलते इन्होंने जो है निशाना आम आदमी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जी
जी, अभी तमाम लोगों ने यही बात बोल रहा है कि सिक्योरिटी होगा तो शांति रहेगा तो टूरिज्म रहेगा जम्मू कश्मीर में। तो लोगों ने यह भी एलिगेशन उठाया है कि इंटेलिजेंस में कुछ फेल्यूर है। इंटेलिजेंस फेल्यूर के कारण उन लोगों ने आवाज उठाया है सरकार के खिलाफ। आप क्या बोलेंगे आप? आ जाओ, पीछे आओ यार। जी बोलो। हाँ, क्या बोलेंगे? देखिए, जो कल जो ये इंसिडेंट हुआ है, वारदात हुई है, ये पिछले 20-30 साल हो गए हैं, हमने ऐसी चीज़ को भी नहीं देखी कि आप 28 लोग जो हैं जिनकी जान अंधाधुंध गोलियां चलाएगी। देखो, किसी भी मजहब में नहीं लिखा, चाहे वो कुरान है, गीता है, ग्रंथ है, कि आप किसी बेगुनाह की जो है जान ले लोगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल जो है ये गलत हरकत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक चूंटी है, उसको भी मारने का दिल नहीं कहता। एक इंसान की जान तो बड़ी कीमती जान तो हर किसी की जरूरी है। आपको लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला करने की ताकत इन लोगों में नहीं है, जिसके चलते निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया है? देखिए, कुछ न कुछ तो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो, ये बहुत बड़ा जो हादसा हुआ है। मैं रात को देख रहा था, एक लेडीज बेचारी जो अभी नई शादी जिनकी हुई थी, तो हस्बैंड की डेड बॉडी पड़ी है, वो पास बैठी हुई है। तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आई वो सीन मुझे देख के। एक लेडीज बेचारी है, उसके हस्बैंड को मारा गया और खुद कहती है मुझे भी मार दो, बच्चे को मार दिया। मुझे बात बताओ, ये कौन से किस मजहब में लिखा हुआ है? मैं तो इनको इंसान समझता नहीं, ये दरिंदे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान की जो ये हरकतें हैं, ये बिल्कुल उनकी अपनी हालत क्या है, पहले वो अपनी हालत देखें। लेकिन आप पिछले 20-30 साल से यहाँ कितने लोगों की जानें चलेगी। एक घोड़ा चलाने वाला जो घोड़ा था, उसके मालिक को भी मारा गया इन्होंने, वो घोड़े पर ही गोलियां चलाएगी। मुझे बात बताओ, ये किस मजहब में लिखा हुआ कि आप किसी की बेगुनाह की जान ले लो? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम एक बार में उनको जिन लोगों की जानें जा चुकी हैं, मैं उनको जी राजन, जम्मू का इस वक्त की जो परिस्थितियां है, उस जो तमाम जानकारी आपने हमें बताया, हमारे दर्शकों को बताया, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपको विदा देता हूँ, बाद में हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। और এনেদৰে জম্মুৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদী সমদল, প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। চৰকাৰ বিভিন্ন শ্লোগান দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। শান্তি আৰু নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। লগতে কুখ্যাত পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায়। Beautiful to you, but Sierra News 18 has managed to reach Baisaran Valley. It might look beautiful to you, but this is the scene of that carnage which unfolded yesterday here, and massive firing was witnessed in this valley. Though there is a massive deployment in these mountains behind me, but just now the Union Home Minister has instructed security forces to carry on massive operations around this place. You will still see a large presence of security forces behind me. We are among the first few channels to reach here by foot after trekking for several hours, and the Home Minister has just left behind us in a helicopter. We have been told that best possible treatment care will be done to them who are injured right now, and the government has also announced compensation. But look at the situation here. Must have been really deadly yesterday when the things unfolded. You can also notice somebody's slippers, shoes and belongings are still lying around, and this is the scene where the NIA and the forces are also investigating now to what really transpired yesterday. Ishanwani from Baisaran for CNN News 18. আমি বিশেষ সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে দুপৰৰ সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।